कश्मीरी पंडितों की मुख्तलिफ तंजीमों और कारकुनों ने जूरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और इसराइली फिल्म मेकर नदवा लैपिड के बयान की मजम्मत की है। रूट्स इन कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर अमित राणा ने कहा कि नदवा लैपिड को इस फिल्म के बारे में ऐसे बयान देने का कोई हक नहीं है। इसराइली फिल्म मेकर नदाव लैपिड ने फिल्म दी कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा और बेहुदा फिल्म करार दिया था। हिंदुस्तान में इसराइल के सफीर नारगिलन का कहना है कि कश्मीर फाइल्स के हवाले से इसराइली डायरेक्टर का बयान उनकी निजी राय है, हमारा मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है। I enjoyed yesterday evening, most of the evening, very much in Goa because it was a very positive, demonstration of the wonderful relations between India and Israel. Minister Taku we had there was praising our cooperation. We had the Fauda people there, and everyone was very happy. I think that one private person with his own opinion shouldn't change anything here, and that's what I was trying to tell. That the relations are much stronger than this individual, another individual. Each one is entitled to his own opinion. My opinion is obviously different. I'm very happy in India. I think that the relations will continue regardless of this or another individual. And we will continue to celebrate our cooperation and our culture closeness and our unity rather than focusing on मुंबई में इसराइल के काउंसल जनरल कोबी शोशानी ने अनुपम खेर से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों ने इसराइली डायरेक्टर की जानिब से फिल्म दी कश्मीर फाइल से मुताल्लिक दिए गए बयान पर मीडिया से बातचीत की। And I felt after I was in Goa last night and I've heard this speech which we don't accept none whatsoever. The first person to call, and I did right away in the morning, to call Anupam Kher, my friend, and just to apologize. Apologize about speech that was a private opinion, maybe with some European juries, but nothing to do with the state of Israel, officially and unofficially. I tweeted, I sent some clips that I had with Pallavi and Pallavi Joshi and Vivek, the director of the Kashmir file, that I did a year ago. And I want to make in a very clear voice that I'm a diplomat, I cannot intervene in internal Indian discussion. But definitely, I want to say that it's not a propaganda. Definitely, I would like to say that it was very strong film and give the place to the people who suffer in Kashmir. I know that Anupam Kher, his family came from Kashmir, and it's also connected to this issue. So I feel that in every country which has a freedom of speech, there are people who think they will use a platform like this. If he himself does not like a film, you are most welcome to say it. But if you are the jury member, you cannot use the word vulgar propaganda. I think it's a vulgar remark by that person, and who himself is vulgar and who himself is an opportunist who used this platform to put forth his propaganda or whatever he believes in. The world has identified with the film, and the pain and the problem of Kashmiri Pandits have been going on for the last 32 years. But in answer to your question, it has strengthened the ties, because when somebody opposes certain things, you discover how together the two countries are. For the amazing, very brilliant gesture by Counsel General to have come here proves that this is a relationship, and it is a relationship of pain, because both the countries have suffered exodus and Holocaust. So, which is the truth. That's what I feel. ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के बैनुल-अक़वामी कोऑर्डिनेटर उत्पल कौल और दीगर ने भी कश्मीर फाइल्स पर इसराइल के डायरेक्टर के बयान की मजम्मत की। No!
इस्राएली फिल्म मेकर नदाव लपेट की तरफ से कश्मीर फाइल के बारे में उल्टी बातें करने के बाद कश्मीरी पंडित नाराज हैं। इस वक्त हम रिलीफ कमिश्नर डिपार्टमेंट के सामने हैं और यहाँ पे जो पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पे तकरीबन 201 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 201 दिन हो गए इनको लगातार ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जब कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद राहुल भट्ट, रजनी बाला और उसके बाद पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या हुई। उसके बाद ये जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय जो कश्मीर के डिफरेंट एरियाज में काम कर रहे थे वो यहाँ पे जम्मू पहुंचे और यहाँ पे उन्होंने एहतजाज शुरू किया। ये लोग भी आज बहुत आहत हैं, बहुत परेशान हैं और बहुत ही गुस्से में हैं। उपल जी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे जो ये हड़ताल, ये 201 दिन हो गए इनको एम्प्लॉयज को। पहले तो इस पर बात करूंगा क्योंकि ये आप यहाँ पे आए हैं दिल्ली से, आपका कनेक्शन पूरा इंडिया में है। क्या आपने इस पर बात की है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी से बात हुई है? और इन लोगों की जो दर्द है क्योंकि सैलरीज भी बंद हो गई है, क्या कहेंगे इस पर? मैं पहले इन एम्प्लॉयज को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बताना चाहता हूं कि पूरा कश्मीरी समाज जो इस वक्त कम से कम 35 देशों में है वो सब इनके साथ है। पूरी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के साथ में है। चाहे हम कितने भी संगठन हो, चाहे हम दिल्ली में, बॉम्बे में, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, हम लंदन में, कहीं पर भी हैं वो इनके साथ में। हम इनके सपोर्ट में डॉक्टर शफाइल्का बांजी लंदन से आई हैं, मैं और कई लोग यहाँ आए हैं ये बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये इनके ऊपर ये जुल्म नहीं, ये मेरे ऊपर जुल्म है, ये हमारे ऊपर जुल्म है। कश्मीर में कश्मीरी पंडित्स आर विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड और हमारे साथ पहले 20 साल मजाक किया गया और हमको कई साल 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर में टेंटों में रखा गया। उसके बाद एक रूम टेनेंट में हमको रखा गया। उसके बाद जब बोला रिहेबिलिटेशन करेंगे और जब ये पीएम पैकेज की बात आती है, पीएम पैकेज का मतलब है ये प्राइम मिनिस्टर की पैकेज है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसों में होनी चाहिए। ये थोड़ी लेफ्टिनेंट गवर्नर की पैकेज है, ये थोड़ी चीफ मिनिस्टर की पैकेज है। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब होना चाहिए, ये पूरे देश में इनको भेजना चाहिए था क्योंकि कश्मीरी हिंदू जो है दे आर ब्रिलियंट, दे आर ये कोई किसी के मोहताज के सिफारिशी नहीं है। ये अपनी मेहनत से, अपनी लगन के साथ ये देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं। पीएम पैकेज जो है ये टोटली मिसकंसीव्ड, ये फेलियर है इसका, ये फेल्ड ये स्कीम है। जम्मू कश्मीर में 2 कानून चलते हैं, पहले जैसे आर्टिकल 370 और 35A था, आज भी 2 कानून चलते हैं। एक पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के लिए कानून है और एक जो जनरल कैटेगरी के एम्प्लॉयज है, इनकी कहां सिफारिश है। और मैं चाहता हूं कि पीएम पैकेज इसको स्विटर क्रॉप किया जाए, इसको खत्म किया जाए और इनके लिए ये भी जनरल एम्प्लॉय जैसे होने चाहिए। जम्मू कश्मीर में अगर तबादला होना चाहिए, क्या इनको डिस्ट्रिक्टों में कहां भेजा? कई यहाँ बच्चे हमारे हैं जो यहाँ वहां पैदा ही नहीं हुए और उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में भेजा। क्या डिस्ट्रिक्ट है वो इसका? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इसका अपना? इसका डिस्ट्रिक्ट है पूरा जम्मू कश्मीर, इसका डिस्ट्रिक्ट है पूरा भारत और इनको कहीं भी भेज सकते थे। इनका कहना है कि सरकार को कश्मीरी पंडित जो पीएम एम्प्लॉयज हैं, पैकेज एम्प्लॉयज, इनकी बात सुननी चाहिए और जो कश्मीर फाइल पर जो कंट्रोवर्सी है उस पर इनका कहना है जो फिल्म मेकर है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जो कश्मीरी पंडित हैं उनके गुस्से को थोड़ा ठंडा किया जा सकता है। कैमरामैन आशु के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। पीडीपी के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी महबूब बेग ने कहा कि फिल्म कश्मीर फाइल्स मुतनाज़ा बन गई है। बॉलीवुड ने पहले भी कश्मीर पर मबनी फिल्में बनाई थी, वो दरअसल मुतवाज़िन थी, ताहम कश्मीर फाइल्स मुकम्मल तौर पर मुतासिब और यकतरफा फिल्म है। मुल्क में इस फिल्म की सरकारी सतह पर तशहीर की गई जो कि जानिबदाराना है। देखिए, एक तो एक जूरिस्ट थे मेरे हिसाब से, उन्होंने अपनी पर्सनल ओपिनियन का इजहार किया है। इंटरनेशनल को छोड़ दीजिए, अगर आप नेशनल लेवल पे भी देखेंगे तो इस फिल्म पे तो काफ़ी तजाद हुआ था। तजाद इन द सेंस कश्मीर पे, कश्मीर सिचुएशन पे बॉलीवुड ने इससे भी पहले फिल्म्स बनाई। हैदर थी, कश्मीर मिशन कश्मीर था, मशाल थी, हालांकि वो प्लाइट ऑफ माइग्रेंट्स पे ही थी, मगर बैलेंस थी।
ये फिल्म जो थी ये तो टोटली वन साइडेड थी। दूसरा साइड, दूसरा पहलू जो कश्मीर सिचुएशन का था उसको तो बिल्कुल इग्नोर किया गया था और सिर्फ एक ही पहलू इस मुसीबत का, इस तकलीफ का दिखाया था। तो इसलिए उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, वैसे भी जिन्होंने जो ऑब्जेक्टिव लोग हमारे देश में भी हैं उन्होंने भी इस पर क्रिटिसाइज़ किया कि ये आपने सिर्फ एक पहलू दिखाया। तो पिक्चर के दोनों पहलू, जैसे इससे पहले बॉलीवुड ने कुछ शानदार फिल्म्स बनाई थी जिसमें दो, क्योंकि एक ही साइड की बात करने से आप बायस्ड लगते हैं, आप ऑब्जेक्टिव नहीं लगते, और फिर ऑफिशियली इसको प्रमोट किया गया। इसराइली फिल्मसाज और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के ज्यूरी के सरबराह नाडो लैपिड की जानिब से द कश्मीर फाइल से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान पर कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ही ऐसी फिल्म की हिमायत कर सकती है। उन्होंने कहा कि इतने स्टेज पर अगर कोई फिल्मसाज ये बात करता है तो वो अपने आप में अहमियत की हामिल है। अल्वी का कहना है कि इस फिल्म ने हिंदुस्तान और कश्मीर का नाम बदनाम किया है। सुनिए उन्होंने मजीद क्या कहा। IFFI के जूरी हेड और इजरायली फिल्म निर्माता के बयान के बाद कश्मीर फाइल एक बार फिर से चर्चाओं में है और इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से इतना बड़ा बयान आया है और साफ तौर पे कहा गया है कि एक अश्लील फिल्म है और प्रोपेगेंडा पर आधारित है, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मिस्टर लैपिड इसराइल के बड़े फिल्म मेकर हैं, दुनिया में उनका नाम है, और वो इस ज्यूरी के प्रेसिडेंट थे। इंटरनेशनल फेस्टिवल जो गोवा में हो रहा है, उन्होंने कहा है कि ये इतने प्रेस्टीजियस फेस्टिवल के अंदर इतनी गलत फिल्म है जो सिर्फ प्रोपेगेंडे के लिए बनाई गई है। भारत की छवि खराब होती है, कश्मीर की छवि खराब होती है और हमारे दुश्मनों के हाथ मजबूत होते हैं, और इस फिल्म के पीछे भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार का हाथ रहा है। अमित शाह देश का होम मिनिस्टर फिल्म देखने के लिए जाता है, आपने सोसाइटी को बांट दिया, नफरत पैदा कर दी। हद ये है, वो बॉलीवुड जो हमेशा कम्युनल हार्मनी की बात करता था, उसको भी आपने नफरत के अंदर, दो हिस्सों के अंदर बांट दिया है। सर, एक अंतिम सवाल करना चाहूँगी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत ज़्यादा इस फेवर में थी इस फिल्म के, और उसके बाद जब से बयान आया है तो बयानबाजी जो है वो दोनों तरफ से शुरू हो गई है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि अब पार्टी का भी जो है वो रुख आने लगा है साहब? देखिए, जिस पार्टी का होम मिनिस्टर गुजरात के अंदर ये कहता हो कि 2002 में हमने तो दंगों में बदला लिया था, वो पार्टी ऐसे फिल्मों को प्रोपेगेट नहीं करेगी तो क्या करेगी? उनका तो काम ही नफरत फैलाने का है। बीजेपी के नेताओं के सर झुके या ना झुके, अमित शाह के इस बयान पे मेरा सर झुक जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन हरीश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। श्रीनगर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। उनका कहना है कि वक्त आने पर वो अपने नंबर्स साबित करेंगे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कॉरपोरेशन में मसाइल खड़े करने के इल्जामात लगाए। जुनैद अजीम मत्तू का कहना है कि बीजेपी और एनसी को कोरम पूरा करने के लिए एक साथ आना पड़ेगा। जाती मुफाद, आपस में खींचातानी, ये उतारने चढ़ाने का 6-6 महीने बाद मसला, ये बाजार में ये बात डालनी कि आज कितना देना है पैसा, आज कितना लेना है पैसा, ये शहर श्रीनगर के साथ भी अब एक जुल्म है, इंतहा है। तो हमारा जो ग्रुप है वो इंटैक्ट है। मैथमेटिक्स मैंने आपको नंबर बता दिया। अब ये किस ख्वाब गफलत में है वो मुझे पता नहीं, आपको इमरान साहब उसको वजाहतन बताएंगे। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, उनके ऑफिस में एक उनके कॉर्पोरेटर हैं और 2 लोग मैं नहीं जानता हूं और 2 कौन है, एक थे कॉर्पोरेटर उनके, कि हम जी सपोर्ट विड्रॉ करते हैं। देखिए, इसमें ये लेजिस्लेटिव सिस्टम नहीं होता, इसमें सपोर्ट होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, इसमें फ्लोर स्ट्रेंथ होती है, फ्लोर टेस्ट होता है। बीजेपी का अपना मंशूर है, बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है। आई रिस्पेक्ट दैट, इट इज अ डेमोक्रेसी। लेकिन 2-3 चीजें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गिलकार साहब ने कही, उनकी मैं बात करूंगा। एक, उनने कहा कि ये जब मेयर बने अल्ताफ बुखारी साहब ने हमारे सामने गिड़गिड़ाया। पहले अल्ताफ बुखारी साहब एक बहुत सीनियर लीडर हैं। अल्ताफ बुखारी साहब
अपना घर बनाने के लिए सियासत में नहीं निकले हैं। अल्ताफ बुखारी साहब भी एक नॉन ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आए, नॉन ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आए हैं। वो भी एक कोशिश कर रहे हैं कि यहां एक बदलाव आए, और एक इतने सीनियर लीडर के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। उनने सजाद लोन साहब का कहा कि सजाद लोन साहब ने हमसे भीख मांगी जब पहली बार मुझे मेयर बनना था। सजाद लोन साहब अलग तंजीम में, मैं अलग तंजीम में हूं, लेकिन मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं। वो भी एक बहुत सीनियर लीडर हैं। ये जेबा नहीं देता जो कहा गया, बहुत बदकिस्मती की बात है, मैं मजम्मत करता हूं। मैं एक और स्टेटमेंट की मजम्मत करता हूं कि एलजी साहब का नाम इसमें घसीटा जा रहा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर का नाम घसीटा जा रहा है कि मैंने जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से 200 बार अपॉइंटमेंट लिए। मैं तो आप सबके सामने बोल रहा हूं, मेरा काम नहीं है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिलना। एनी एंगेजमेंट विद द सेंटर वो हमारी पार्टी क़यादत का काम है। मैंने कभी कोई अपॉइंटमेंट सीख नहीं की है। मैं आपके वजाहतन आपसे बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक बड़ा अदना सा, हिंदुस्तान में 150-200 मेयर होंगे। मेरी न वो औकात है, न मेरा वो एम्बिशन है, न मेरा दर्जा है कि मैं डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर से मीटिंग सीख करूं। तो ड्रैग किया ऑनरेबल होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को भी इसमें, विच इज अनफॉर्चुनेट। फिर कहा गया कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जी डरते होंगे, हम नहीं डरते हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। ऑनरेबल एलजी साहब को क्यों बार बार इसमें लाया जा रहा है? मेरी ऑनरेबल एलजी साहब के साथ एक ये रिलेशन है, मैं मेयर हूं, वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हेड ऑफ द स्टेट भी हैं, हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है अभी, और उनने हमेशा वक्तन फवक्तन शहर की बेहतरी के लिए ये चाहा है कि काम हो। उनने कोई गलत थोड़ी एडवांटेज मुझे दी है, उनने कोई अनड्यू फेवर थोड़ी दिया है, उनने कहीं पे कुछ ऐसा थोड़ी किया है जो उनकी शान और शौकत के खिलाफ है। उनका नाम इसमें क्यों लाया जा रहा है बार बार? और ये कहना, ऐसे अल्फाज यूज करने के ऑनरेबल एलजी साहब शायद डरते होंगे, मैं नहीं डरता हूं। जितना मुझे ऑनरेबल एलजी साहब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बड़े स्ट्रांग लीडर हैं, उनका फोकस है, उनका प्रिसीजन है, उनको क्या करना है एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको पता है। मुझे लगता है ये वाजिया करना चाहिए था हमें, वाजिया उनको भी पता होना चाहिए था। दे शुड लुक एट द हिस्ट्री। अब उन्होंने डिसोन किया अपने लोगों को। जो वन डे ब्लॉक कन्वेंशन 2.5 महीने पहले डाउनटाउन खानियार में हुआ, पुलिस के लॉग्स चेक करने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा, तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको कि दैट वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, द पीपल हु वर डिसोन्ड। रिसेंट जो अभी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे उसमें हल्का मीटिंग थी जिसको डिसोन किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में, ही इज ओनली वन। उसमें भी वो आप देखेंगे कि दिस इज, देखिए झूठ को हम झूठ बोलने निकले, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी, कोई भी चीज, कोई भी गरज नहीं है। आई थिंक बिकॉज जुनैद साहब हैज स्पोकन एब्सोल्युटली फ्रॉम हिज हार्ट, एब्सोल्युटली वी हैव टोल्ड यू पीपल दैट दिस इज व्हाट इज द रियलिटी। ये एक और चीज जो मुझे लगता है हमें बोलनी चाहिए। अब हमने 4 साल से देखा है ये, आई हैव बीन इन ऑपोजिशन, वी हैव बीन इन टुगेदर, वी हैव बीन अपार्ट, बट नाउ अनदर ग्रुप विल कम एंड दे विल गिव प्रेस कॉन्फ्रेंस stating we have taken the support, then another group will come and say we have taken the support. ये ड्रामा चलता रहेगा, but the reality is the day we are asked to prove our numbers, we will prove. हम मंडी वंडी का साथ देने वाले नहीं है। डिप्टी मेयर परवेज कादरी ने कहा कि मेयर एसएमसी के उसूल और ज़वाबित के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मेयर कारपोरेटर्स का एहतराम नहीं करते, आवाम का पैसा लूट रहे हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सियासत गर्मा गई है। मेयर को हटाया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा, उसके किसके पास कितनी ताकत है, कितने लोग हैं, इस पे बहस चल रही है। हमारे साथ डिप्टी मेयर परवेज कादरी साहब हैं। परवेज साहब, मुझे एक चीज बताएं, क्या वाकई मेयर को हटाने का मंसूबा है? जी बिल्कुल, ये तो क्लियर सी बात है। हम सारे लोग यहाँ पे, आपने देखा होगा जब पिछली बार यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, उसकी कयादत जो मेयर साहब ने आज एलिगेशन लगाई कि बीजेपी ने हटाया, वहाँ उसकी कयादत हमारे कॉर्पोरेटर वहीदार साहब कर रहे थे उस ग्रुप की। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साथ ही है, और जब इसने पहले पहल की, जब हमने इसका साथ उसमें दिया, हम आगे भी। नंबर्स हैं क्या? नंबर्स बिल्कुल है। कोरम का मसला है, कोरम अब की बार जो बदल गया है कि 54 लोग हैं, 56 लोग हों, तो वो ज्यादा मसला जी। आप मेयर साहब को ये कहिए, लोगों को धमकियां देना, ब्लैकमेल करना बंद कीजिए। यहाँ पे उसके खिलाफ 72 में से 71 लोग आएंगे। बीजेपी की एक मीटिंग हुई, वहाँ ये कहा गया कि एक ग्रीन सिग्नल दी गई कि
मेयर को हटाने का आप साथ दे दीजिए। उनके पास 4+4 या आप कहें 7 लोग हैं, क्योंकि 4 उनके डायरेक्ट हैं, 3 इनडायरेक्ट हैं या 4 इनडायरेक्ट हैं। अगर मीटिंग हो गई, बात हो गई, फिर क्या रात में क्या हुआ कि वो अकेला रह गया? कौन सा अकेला रह गया? जब कल मीटिंग हुई, आज वो कह रहे हैं वेट एंड वॉच। जी देखिए, उनका कहना, वो जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस बंदे ने दी, वो यहाँ का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक हिस्सा है, और यहाँ की जो अहम स्टैंडिंग कमेटी है बाय वर्च्यू ऑफ दिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000, वो उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर है। उसको पता है कि शहर में कहाँ पे मेयर साहब ने गलतियां की है, कहाँ पे उसने जुल्म किए हैं, कहाँ पे उसने खुद काम किए हैं जो उसको भी पता नहीं है। वो तो बोलेगा, जायज बात तो उसकी है। टारगेट आप हैं और आपके जरिए टारगेट नेशनल कॉन्फ्रेंस। जी ये मैं कहूंगा कि यहाँ पे टारगेट कोई चीज नहीं है पीएचडी के अलावा। कह रहे हैं सब, और अच्छा, हमारा वास्ता एनसी से रहा है। हमने 20 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस में 22 साल दिए हैं। हमने अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं है। हम अब डिसाइड करेंगे कि हमें किस पार्टी को यहाँ पे जिताना है, हम किसको पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अभी हम किसी पार्टी में नहीं गए हैं। मैं गए थे जब 370 का मसला हुआ, हमने LID की फिर से इख्तियार कर ली, और जब जुनैद मोतू का नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, तब हमारे इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 बंदों को निकाला है तंजीम से, क्योंकि उन्होंने मेयर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में हिस्सा लिया। हमने तब बीजेपी का साथ नहीं दिया था, हमने अपने कॉर्पोरेटर जो इंडिपेंडेंट है यहाँ पे, वही डार साहब, इन्होंने नो कॉन्फिडेंस भरा था, इनका साथ दिया था। ये तो तब भी एक तो बीजेपी का सपोर्ट लेके सत्यपाल मलिक साहब ने 20 दिन पहले ऐलान किया। अभी तो मुझे भी पता नहीं था कि मैंने इलेक्शन जीता है नहीं जीता है। सत्यपाल मलिक साहब ने तो मुझे नहीं कहा कि मेयर। मुझे एक चीज बताइए, ये यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियली एक मेंबर है। अब आपने कह दिया कि हम भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है, क्योंकि पहले भी थे, अब बीच में छोड़ दिया था, इंडिपेंडेंट लड़ा। लेकिन यहाँ क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की कयादत आप कर रहे हैं कि कॉर्पोरेटर्स की? नहीं, मैं यहाँ पे एज इंडिपेंडेंट डिप्टी मेयर बैठा हूँ। मैंने यहाँ पे बीजेपी के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ा है। यहाँ पे किसी बंदे ने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ा है। मैंने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है और मैं बीजेपी के खिलाफ यहाँ पे मेयर बना हूं। मैंने सवाल पूछा मेयर से कि आम लोगों में ये धारणा है, एक मैसेज गई है कि यहाँ करप्शन चल रहा है। आप लोगों ने भी एक दूसरे पे इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा मैं तैयार हूं, कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी करे, किसके पास कितने एसेट्स हैं, किसने कितना माल कमाया है गैर मतलब करप्शन से। क्या आप और आपके साथी तैयार हैं? जी हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर मेयर साहब को भी उस कमेटी का चेयरमैन गवर्नमेंट नामजद करती है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। मगर मेयर साहब खुद फैसले सुनाए, हम उसके लिए तैयार नहीं है। ये घर बैठ के कहानियां बनाए और लोगों को सुनाए, हम उसके लिए नहीं है। हमें अपनी सिक्योरिटी एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। अगर इन्होंने कहीं पे कंप्लेंट की है हमारे कॉर्पोरेटर्स के खिलाफ, डिप्टी मेयर के खिलाफ, वो देख रही है। जब हम उनका काम हैम्पर नहीं कर रहे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर नहीं होने देना है, करे ना, आराम से करे। जम्मू में जो मीटिंग हुई बीजेपी की, उनका साथ लेने मांगने गए थे क्या हम जम्मू घूमने भी नहीं जा सकते हैं? अपनी यूटी है, नहीं जा सकते हैं। अगर यहाँ से कोई बंदा जम्मू गया, दिल्ली गया, क्या ये जरूरी है कि आप बीजेपी वालों से ही मिलने के लिए गया है? किसी के साथ मांगने तो नहीं, किस लिए? कॉर्पोरेटर है जी वो तो साथ है, जी वो तो साथ है, वो तो इस मोशन के साथ ही है। उन्होंने कल कहा कि अगर यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन होगी तो हम तैयार हैं, हम सपोर्ट करेंगे। मैं भी वही कह रहा हूँ, चाहे हमारा जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, अगर वो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन दायर करे, जो मेरा अपना ग्रुप है यहाँ पे, मैं भी सपोर्ट करूंगा। शुक्रिया। बीजेपी ने श्रीनगर में बीजेपी हेडक्वार्टर में उनके एक कारपोरेटर के जरिए कल की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग कर लिया है। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज कहा कि कारपोरेटर नज़ीर गिलकार की तरफ से की गई पीसी पार्टी कायदीन की रजामंदी के बगैर थी और यह पार्टी कायदीन पर मुनहसर है कि किसकी हिमायत करनी है और किसकी नहीं। ठाकुर ने यह भी कहा कि एसएमसी के मेयर जुनैद अज़ीमतू के खिलाफ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कल नहीं की है। एज ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, या जो हमारे और स्पोक्स पर्सन है। और जो कल कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का बैनर इस्तेमाल करते भारतीय जनता पार्टी के यहाँ
बैनर के नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और जो कुछ उन्होंने कहा है वो उनकी जाती राय हो सकती है, पार्टी का साथ उसके साथ कुछ लेना लेना है। न वो पार्टी ने उनको वो अथॉरिटी दी है और न वो अथॉरिटी पर्सन है कि वो मीडिया के सामने जाए, और न उनके पास वो अथॉरिटी है कि वो डिसीजन ले सके कि हमें किसको सपोर्ट करना है और किसको सपोर्ट नहीं करना है। ये जनाब जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और स्टेट चीफ रविंद्र रैना जी है उनके डोमेन में आता है, और जो हमारे जनरल सेक्रेटरी और कश्मीर अमूरात की जो इंचार्ज है सुनील शर्मा जी, अगर उन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन लिया होता तो हमारी जो म्यूनिसिपलिटी में हमारी चीफ व्हिप है आरिफ राजा साहब, जो सैनिटेशन और हेल्थ के चेयरमैन भी है, तो उनके जरिए शायद पार्टी इसको कराती। भारतीय जनता पार्टी कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपने आप को अलग करती है, ये उनकी जाती राय है, ये उनकी जाती कहना है। भारतीय जनता पार्टी का इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। सरहद पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों ने गांव कैलाश हवेलियां जिला उत्तरन तारन के करीब इलाके में पाकिस्तान से मुश्तबा ड्रोन के दाखिल होने की गूंजती आवाज़ सुनी। फोर्सेस के मुताबिक फौजियों ने फायरिंग करके मुश्तबा ड्रोन को रोकने की कोशिश की, गोली लगने पर ड्रोन जमीन पर आ गिरा। फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और पुलिस और मुतल्लिका इदारों को इतला दी गई। बडगाम के मेन टाउन में लोगों ने पीडीडी के खिलाफ एहतजाज किया। खवातीन ने रोड ब्लॉक करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया, जिसके सबब ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हुआ। पुलिस एहतजाजियों को हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नाराज अफराद सड़क खाली करने को तैयार नहीं है। हमारे नुमाइंदे ने तमाम सूरत हाल का जायजा लिया। बडगाम के लोग लगातार एहतजाज कर रहे हैं महकमा बिजली के खिलाफ। लोगों की अक्सर यही शिकायत रहती है कि सरमा के दौरान बिजली होती नहीं है। इसी सिलसिले में आज खवातीन आई है, रोड ब्लॉक किया है और ये अपना एहतजाज दर्ज करे। इनका एहतजाज इसलिए भी है क्योंकि आज महकमे की जानिब से मीटर लगाने के लिए आए थे यहाँ पे उनके अफसरान, तो इन खवातीन ने मीटर लगाने नहीं दिया। यहाँ पर देखिए किस तरह से ये रोड ब्लॉक कर रहे हैं। इनकी मांग है कि अगर वो पहले से ही इतना मोटा फी दे रहे हैं उसके बाद भी बिजली क्यों नहीं रहती है। ये कहते हैं लगातार हम मीटर लगाने नहीं देंगे। और जो बडगाम के लोगों के साथ वादा किया गया था, जब यहाँ पे ग्रिड स्टेशन बनाया गया था, तब लोगों के साथ वादा किया गया था कि इन्हें 24 घंटे बिजली फराहम की जाएगी, लेकिन फी तो मोटा दिया जाता है। लेकिन लोग देखिए किस तरह से अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ये इस कार्रवाई के बिल्कुल खिलाफ है। अगर ये पहले से ही अपनी मोटी फी दे रहे तो बिजली 24 घंटे रहती क्यों नहीं है। तो ये एहतजाज लोगों ने दर्ज किया है। बडगाम मेन टाउन में एहतजाज है, पूरा रोड ब्लॉक हुआ है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। और ये लोग लगातार यही अपील कर रहे हैं कि डीसी बडगाम खुद यहाँ पे आए, इनके साथ बात करें और यकीन दहानी के बाद ये लोग अपना एहतजाज ख़त्म करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन।